Well, we've been listening from Pastor James and from other preachers, how to live the Christian life. हम पासवान जेम्स और कई प्रचारकों के द्वारा ये लगातार सुनते आ रहे हैं कि मसीही जीवन कैसे व्यतीत करना है। The key to the Christian life. मसीही जीवन की जो कुंजी है, How do I live the authentic Christian life? एक असलियत और वास्तविक मसीहत जीवन में कैसे जीऊं। And many more we have heard from different preachers. और कई प्रचार संदेश हमने कई प्रचारकों से भी सुने हैं And we have learned quite a lot of principles, how to live the Christian life. और इस तरह से कई सिद्धांतों को हमने प्रचारकों से संदेशों से जाना है। Well, today I'm here to remind all of us that if you have not applied those principles in your life, let us start applying. मैं आज यही सभी को याद दिलाना चाहता हूं, अगर अभी तक हमने उन सिद्धांतों को लागू नहीं किया है जीवन में, आज वो समय है कि उन सिद्धांतों को हम लागू करें। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Amen. So for today's topic, when I was meditating, when Pastor James called me and said, "Hey, Adibo, you're going to preach on so and so day," I was like, God, I cannot do that. But he just encouraged me. He says, "You can do it." और जब पासवान जेम्स ने मुझे बताया कि इस तारीख को, इस रविवार को अदीबो कि तुम प्रचार करोगे, तो मैं सोच रहा कि कैसे, लेकिन पासवान जेम्स ने मुझे प्रोत्साहित किया कि तुम कर सकते हो। And I was just meditating in the morning. I went up to the roof. I was having a good sun bath, and I was also praying and reading Bible. And suddenly, this line came to me: "Let us live the true Christian life." और मैं आज सुबह जब मनन कर रहा था, अपनी छत पर गया, धूप निकली हुई थी, और जब मैं मनन कर रहा था, दुआ कर रहा था, तब ये वचन, ये कथन परमेश्वर ने मुझे दिया कि आए हम मसीही जीवन में आगे बढ़े। Amen. आमीन। Are we ready to live a true Christian life? क्या हम तैयार हैं एक सच्चा मसीह होने के लिए? 100. Let us give 100% to Him. आइए हम ना 100% परमेश्वर को दें। And this is our lifespan. The human lifespan is like, maybe if you live a longest life, probably you cross 90 above or 100, or maybe, if God is so merciful with you, He will give you maybe 120 years or 110, or I don't know how long. और हम सभी जानते हैं मनुष्य जो जीवन है, अगर आप बहुत ही तंदुरुस्त और परमेश्वर के द्वारा ज्यादा आशीषित हैं, तब हो सकता है हम 90 साल या उससे ज्यादा, या कई मर्तबा हो सकता है 100 साल या उससे ज्यादा भी आपकी उम्र हो जाए। So we don't have much time. We don't have much time to just roam around here and there and just keep on messing around. इसलिए हमारे पास इस जीवन काल में इतना समय नहीं होता कि अपने जीवन को हम इधर उधर भटक कर व्यर्थ कर दें। Amen. आमीन। As a child of God, as a believer, as a Christian, today let us ask to ourselves, where do I stand with Christ? और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते आइए आज हम खुद से प्रश्न करें कि मैं मसीही सफर में कहां खड़ा या कहां खड़ी हूं। Do you listen to His voice every day? क्या आप हर रोज परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं? Or just once in a while? या कभी कभार जब मन किया तब Or सुनते once हैं? in a blue moon? या कभी ऐसा समय हो खास, कोई ऐसी परिस्थितियों वहीं पर सुनते हैं? Examine yourself today अपने आप को आज स्मरण कराएं and see where do you stand with Christ. और आप देखें कि मैं मसीह सफर में आज कहां खड़ा या खड़ी हूं। And I want all of us to experience every day the presence of this Almighty God. Every day, then you will see yourself that you walk in the path that you have never imagined. और मैं चाहता हूं कि हम में से हर एक जन हर रोज परमेश्वर के अभिषेक में होकर चले और हर रोज उस अभिषेक में स्नान करे और उसका अनुभव उठाए जिसका हमने शायद कभी ना उठाया हो। I've seen many Christians, they proclaim that I've been, believers since last 50 years, 30 years, for 40 years or 15 years or 10 years. But many of them are not, I cannot see the fruits in their life. और ऐसे कई विश्वासी या मसीहियों को मैं जानता हूं जो कहते हैं कि मैं मसीही में पिछले 50 साल से हूं, पिछले 30 साल से हूं, पिछले 15 साल से हूं, लेकिन जब उनके जीवन को देखा जाए तो उसमें कोई फल नजर नहीं आता। And they are like, I'm not blaming them, but they're literally like complaint box. और मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन अगर आप उन्हें देखें वो हमेशा शिकायत का एक डब्बा होते हैं। They question a lot to God and say, why I am in this situation. और वो परमेश्वर से बहुत प्रश्न करते हैं, लगातार सिर्फ प्रश्न ही करते हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों मैं इस परिस्थिति में हूं। Why me, Lord? Why I cannot see any blessings in my life? क्यों परमेश्वर मेरे ही जीवन में आशीष नहीं आ रही? Why I don't have that others have?
क्यों मेरे पास वो नहीं है जो दूसरे के पास है? Why still there's no breakthrough in my life? मेरे जीवन में कोई बदलाव क्यों नहीं हो रहा Why, परमेश्वर? why? क्यों क्यों और सिर्फ क्यों? And they keep on asking. वो यही प्रश्न परमेश्वर सिर्फ पूछते हैं। But we never try to examine and calm ourselves that why this is not happening, why this breakthrough, why am I the same person after I'm doing the same work, same thing in my life after 10 years also. Why do we need to really calm down and ask ourselves this question. लेकिन हम खुद को कभी जांचते नहीं, इस बात पर ध्यान नहीं देते कि पिछले 10 सालों से, पिछले इतने समय से मैं एक ही काम को कर रहा हूं मैं और एक ही जगह पर खड़ा हूं, ऐसा क्यों है? Think. I want all of us to think. मैं चाहता हूं हम हर जन इस बात के बारे में सोचे। We are very good to give a fake smile. हम सभी बहुत अच्छे होते हैं एक नकली मुस्कुराहट को देने के लिए। Especially when we're wearing mask and you don't know actually whether you are actually angry or you're happy or you're joyful or you're very much aggressive. जब आप मास्क या कि मुखौटा भी पहन लेते हैं, हमें नहीं पता लगता उस मास्क के पीछे आप खुश हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं या आपका कैसी भावना उत्पन्न हो रही है। Today I just want to say and I encourage all of you, do not fake your life with lies. और मैं आप सबको इस बात से प्रोत्साहित करना चाहता हूं, झूठ को अपना कर अपने जीवन पर कोई मुखौटा ना डालें। Do not fake your smile. एक नकली मुस्कुराहट को ना लाएं। Do not fake your words. अपने शब्दों को बनाकर ना प्रस्तुत करें। Do not fake your character. अपने चरित्र को झूठा सामने ना लाएं। Do not fake your faith. अपना विश्वास को जो आप अगर नहीं विश्वास करते झूठा ना दिखाएं। Do not fake your worship. झूठी आराधना ना करें। Do not fake your worship. अपनी आराधना को भी झूठी ना बनाएं। Do not fake your lifestyle. अपने जीवन व्यतीत करने के ढंग को झूठा ना बनाएं। Above all, do not fake your love for God and for others. और हर चीज से बढ़कर जो प्रेम है, जो परमेश्वर जिसके योग्य है और जो दूसरे योग्य है, झूठा प्रेम ना दिखाएं। Stop pretending, stop being hypocrite. हमें दिखावा करना बंद करना होगा। But love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. एक परमेश्वर पिता को अपने पूरे मन, प्रेम और सामर्थ्य से प्रेम करें। Amen. आमीन। Are we ready to love our God with all our strength, with all our soul? क्या हम तैयार हैं परमेश्वर को पूरे प्राण और सामर्थ्य से प्यार करने के लिए? Well, when I was meditating, Holy Spirit says, write down, literally. और जब मैं मनन भी कर रहा था, हो सकता है इस कहावत को, इस बात को हमने पहले कई मर्तबा सुना हो, पवित्र आत्मा ने मुझसे बात कर, बिल्कुल मैंने सुना, उसने मुझे कहा इसे लिख डाल। He says that if you continue to fake your life, God will definitely shake your life. यहाँ पे लिखे अगर लगातार तू अपने जीवन में दिखावा करता रहेगा, झूठा जीवन जीता रहेगा, परमेश्वर ही तेरे जीवन को उस जगह से हिलाएगा जरूर। You don't want God to shake your life. आप ये नहीं चाहेंगे परमेश्वर आपके जीवन को हिला डाले, Because you are faking your life. क्योंकि आप अपने जीवन में विश्वास योग्यता से नहीं चल रहे। The day you start obeying God faithfully, the day you start living a true Christian life, then you will see breakthrough upon breakthrough, favor upon favor in your life. Amen. और मैं आपको बता दूं, जिस दिन आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता करना शुरू कर देंगे, उसकी बात को मानना शुरू कर देंगे, तब आप देखेंगे आपके जीवन में आशीष भी आएगी, नयापन भी आएगा और आपका जीवन भी बदलेगा। Everyone says, let us start living the true Christian life. हर कोई कहे कि आइए हम मिलकर असली और विश्वास योग्यता और ईमानदार भरा मसीही जीवन व्यतीत करना शुरू करें। The first point that I want to share is let's start living a life without pride. तो पहली बात जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो ये है, आइए बिना घमंड का जीवन व्यतीत करना शुरू करें। Pride is the first sin and the most serious sin. Pride is our greatest problem. जब घमंड होता है वो सबसे गंभीर पाप हमारे जीवन में होता है। Why pride is this, first sin? क्यों एक घमंड पहला पाप होता है? Why? Have you ever thought? क्या आपने कभी सोचा है कि घमंड ही क्यों पाप की शुरुआत करता है? Well, the pride does not start from here, but it starts from there, from above. हम जानते हैं जो घमंड है उसकी शुरुआत से धरती से नहीं हुई, वो ऊपर से ही हो चुकी थी। The ultimate example for pride is Lucifer. और सबसे बड़ा उदाहरण घमंड का खुद शैतान है, लूसीफर है। What happened with him when pride entered into his heart? उसके साथ क्या हुआ जब उसके दिल में घमंड आ गया? God cast him out from his presence for eternity. परमेश्वर ने उसे हमेशा के लिए अपनी उपस्थिति से बाहर निकाल फेंका। So we do not want to face the same deadly consequence like him.
और इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारा परिणाम भी वैसा ही हो जैसा लूसीफर का हुआ, Because Jesus, He paid the price for all of us. क्योंकि हम सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक मूल्य को चुका The दिया है, priceless sacrifice. और जिसमें जो पाप रहित एक बलिदान है। So walk and understand the value and the life that God has given to us. और इसलिए समझे और मूल्य दे उस जीवन का जो आपको और मुझे परमेश्वर ने दिया है। God hates pride. The Bible says बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर घमंड से नफरत करते हैं। we must learn to hate what God hates and to love what God loves. इसलिए हमें भी सीखना है उस बात से नफरत करना जिसे परमेश्वर करते हैं और उस बात से प्रेम करना जिसे परमेश्वर प्रेम करते Let हैं। us ask today, how much do you hate pride? आइए हम खुद से भी पूछें कि आज मैं घमंड से कितना नफरत करता या करती हूँ। Not a person who is having a pride, but to hate pride. उस व्यक्ति से एक नफरत नहीं करनी जो शायद घमंडी है, लेकिन उस जो घमंड का गुण है उससे नफरत करना। Proverbs chapter 16 verse 5. नीति वचन 16:5 में लिखा है, It says, the Lord detests all the proud of heart. Be sure of this, they will not go unpunished. यहाँ लिखा है प्रभु उन सभी से नफरत करता है जो दिल में घमंडी है और वो बिना सजा को ना पाए छूटेंगे नहीं। This is the word of the Lord. ये परमेश्वर का वचन This is कहता not है, my word. ये मेरा वचन नहीं है। The word of God says, they will not go unpunished. वचन में लिखा है वो बिना सजा के जाएंगे नहीं। So be sure you are not walking with pride. तो इस बात को पुख्ता कर ले कि मैं घमंड में जी ना रहा हूं। The devil does not come up to us with a red flag and tell us we are proud. You know why? Why he never tells us that you are proud? Because he wants us to continue to work in the path of pride. और कभी भी शैतान लाल झंडी लेकर आपके पास नहीं आएगा कि रुक जाओ, ध्यान दो, तुम तो घमंडी हो रहे हो, क्योंकि वो तो चाहता है कि जो घमंड है हमारे अंदर घर कर ले। God is not there. God is not out there to hurt your pride. He is out there to kill your pride. परमेश्वर वहां पर आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, वो वहां पर आपके घमंड को हटाने के लिए है। God is opposed to the proud. You don't want God as your opponent. और परमेश्वर हमेशा उनके खिलाफ खड़ा होता है जो लोग घमंडी होते हैं, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि परमेश्वर कभी हमारे खिलाफ खड़ा हो। James chapter 4 verse 6 says, but he gives us more grace. That is why the scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. याकूब 4:6 में लिखे परमेश्वर जो घमंडी होते हैं उनके विपरीत खड़ा होता है, लेकिन जो दीन होते हैं परमेश्वर उन्हें अपना अनुग्रह सौंपता है। And you can read, and meditate later on Jeremiah chapter 49 verse 16. आप घर जाके यिर्मयाह 39 उसका 16 घर जाकर पढ़ And सकते I हैं। just picked up one line from there. It says that though you build your nest as high as the eagles, from there I will bring you down, declares the Lord. यहाँ लिखा है कि तुम चाहे अपना घोंसला एक चील की तरह जितना ऊंचा भी बना दो, लेकिन तुम्हारा जो घमंड है या जो परमेश्वर है वो तुम्हें नीचे गिरा सकता है। This is the word of the Lord. ये परमेश्वर का वचन है। Amen. आमीन। We do not help, we need help to see the fruits of pride in our lives. और हमें घमंड के जो फल हैं उसे अपने जीवन में देखने के लिए मदद लगती है। What is the real issue behind your pride? हम घमंड के पीछे की असली समस्या क्या है? Behind your behavior? हम किस तरह के बर्ताव कर रहे हैं घमंड में, उसका कारण क्या है? Are you examining your heart and motives for pride? क्या आपका जो उद्देश्य मसीह के लिए है, आपके इच्छा रखते हैं, क्या आप उसकी जांच करते हैं? What really needs to change beyond outward behavior? हमारे बुरे बर्ताव में क्या बदलाव लाने की आवश्यकता Let है? us ask to ourselves this question. आइए हम खुद से ये प्रश्न पूछें। Let me give you an example. For example, okay, David, I did not ask you to give you an example, but please don't mind. So, David, he always addressed me Bhaiya. और मैं आपको उदाहरण देता हूं, डेविड है हमेशा मुझे भैया करके बुलाता है And he really respect me. और वो मेरी इज्जत भी बहुत करता है। But, one day, it's not, one day he texts me, hey bro. और एक दिन मुझे लिखता है, हे ब्रो। I said, is this David? और तो मुझे अचंभा हुआ कि So- क्या ये वही डेविड है? It's not wrong to call me hey bro. ये गलत नहीं है कि उसने मुझे हे ब्रो ऐसे स्लैंग में करके बुलाया, But, I do not like the approach, the way he approached me. और मुझे पसंद नहीं आया अगर जिस तरह से उसने मुझे बुलाया। And I immediately call him, like, hey, David, I don't expect this, you to call me hey bro, because I'm your elder brother. और मैंने डेविड को कहा कि मुझे पसंद नहीं आया जिस तरह से तूने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं तो तेरा बड़ा भाई हूं।
And he's a very humble person, and he accepted. He says, "I'm sorry, I didn't say this. I mean, to hurt you or to, make you down." और उन्हें मुझे कहा मुझे माफ करे, मैंने जानबूझकर या किसी भी तरह से आपको दुख पहुंचाने के लिए ऐसा नहीं लिखा. And for example, David, don't mind, okay? You're not going to do that. For example, he's now taller than me, bigger than me, and doing a great education. And one day he goes, to the States for the work, for higher study, and he becomes a big man. And one day he called me, "Hey bro, hey man, what's up?" और अगर डेविड बुरा नहीं मानेगा, लेकिन वो अब उसका कद काठी मुझसे ऊंचा हो चुका है, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है और कल को वो भी बाहर विदेश में पढ़ेगा और वहां से जाके मुझे बोले कि हाँ भाई क्या हाल है तेरे. Like, "Hey man, what's going on?" और मुझे थोड़ा अनफॉर्मल तरीके से मुझे कि हे मैन क्या हाल है, क्या कर रहा है. I think I will not accept that. मुझे लगता है कि शायद मैं उस बात को ग्रहण नहीं कर पाऊंगा. But he will never do that. पर वो ऐसा कभी करेगा नहीं. Whether you believe, whether you agree with me in this matter, this is actually a symptoms, I'll say, of pride family. और आप इस बात को माने या नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक चिन्ह होते हैं जब हम ये छोटी छोटी बातें मसीह होने के नाते हम इन चिन्हों को पहचान लेते हैं जहां घमंड आ जाता है. So we do not want to build up, to collect those pebbles of pride with us. और इसलिए हम कभी नहीं चाहेंगे कि घमंड का छोटा अंश भी है उसे हम अपने जीवन में आने दें. Moses, in Numbers chapter 12 verse 3 says that Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth. और गिनती उसके 12 के 3 में लिखा है जो मूसा है वो परमेश्वर का सबसे बड़ा दीन दास रहा है, उससे बड़ा कोई दीन व्यक्ति धरती पर पैदा नहीं हुआ. So we see he walked with humble spirit. आप देखें जो मूसा है वो हमेशा दीन रहकर चला है. And he, I think like from beginning on itself, when he know God, when he had that revelation of God, he walk in humble and he says bye tata to pride. और जैसे हम जानते हैं कि मूसा शुरुआती दिन से ही उसने कभी भी घमंड को कोई महत्व नहीं दिया या घमंड को आने नहीं दिया, उसने हमेशा मसीह को माना है, समझा है और उसमें दीनता के साथ चला है. That's why God spoke with him face to face. और इसी कारण मूसा ही ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर को देखा है. You read the whole chapter, Numbers chapter 12, you will find out. अगर आप पूरा गिनती उसका 12 अध्याय देखें तब आप इस बात को खोजेंगे. God himself, he says that he spoke with me face to face. यहाँ पर परमेश्वर खुद कहता है कि मूसा एक लौता ऐसा व्यक्ति है जिसने मुझे सामने से देखा है. And you can later on meditate Proverbs chapter 16 verse 2. और उसके बाद आप नीति वचन 16 के 2 को भी आगे पढ़ सकते हैं. Jeremiah chapter 9, यिर्मयाह उसका 9 अध्याय 23 and 24. 23 से लेकर 24 आयत को पढ़ सकते हैं. And you can see how Lord exercise, the kindness and justice, righteousness on earth. और क्या किस तरह से परमेश्वर न्याय करते हैं और हलीमियत की कदर करते हैं धरती पर. And he hates pride. और हमेशा घमंड से परमेश्वर नफरत करते हैं. The next point that I'm going to say, और अगला जो बात मैं आपसे बांटना चाहता हूं, a humble life. एक दीनता भरा जीवन. Let us start living a humble life. हम एक दीनता नम्र स्वभाव का बना हुआ जीवन जीना शुरू करें. James chapter 4 verse 10 says, "Humble yourself in the sight of the Lord and he shall lift you up." याकूब की पत्री 4 के 10 में लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करो और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा. I was thinking, oh God, how, who will be the ultimate example for this humble, topic, for this point. और मैं सोच रहा था परमेश्वर इस दीनता का उदाहरण देने के लिए कि सबसे सही उदाहरण मैं क्या दे सकता हूं. Well, we all know Jesus Christ is our greatest and perfect example of humility. और हम सभी जानते हैं यीशु मसीह खुद उदाहरण है सबसे बड़ी दीनता का. During his mortal ministry, he always acknowledged that his strength came because of his dependence on his Father. और यीशु मसीह ने हमेशा इस बात को सराहा है और बोला है कि उसकी हलीमियत उससे आती है क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को हमेशा निर्भर करता है अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर. He did not say, "I am a son of God and I don't care about my Father." और उसने कभी नहीं कहा क्योंकि मैं परमेश्वर का इकलौता पुत्र हूं तो मुझे पिता की बात सुनने की I परवाह don't need to नहीं. listen to him because I am also God. और उसने कभी नहीं कहा कि मुझे पिता को नहीं सुनना क्योंकि सामर्थ्य या परमेश्वर तो मैं भी हूं. But he was always humble. लेकिन परमेश्वर हमेशा दीन और हलीम बने रहे. He always acknowledged God, his Father. यीशु ने हमेशा अपने स्वर्गीय पिता को सराहा है.
Even though he was fully God and fully human, he always depended on God. यहाँ तक कि वो खुद परमेश्वर था और उतना ही मनुष्य था, फिर भी उसने पिता को महिमा दी। In John chapter 5 verse 30, यूहन्ना 5:30 में it says that by myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself, but him who sent me. इस वचन में लिखा है कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। यीशु मसीह कहता है, मैं जो पिता से सुनता हूं मैं वैसा ही मैं न्याय करता हूं, क्योंकि मैं अपने लिए महिमा नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए महिमा खोजता हूं। Jesus himself said this. ये प्रभु यीशु मसीह के खुद के वचन है। This is not Adibo saying. ये पासवान अदीबो नहीं बोल रहे। This is not the word of human, mortal human beings. ये हमारे नाशवान होने वाले मनुष्यों का बोला हुआ वचन नहीं है। Says that I do what pleases him. वो यीशु कहता है मैं वो करता हूं जिससे पिता प्रसन्न होते हैं। That's why dying on a cross was the most humiliating and painful way to die. और इसलिए क्रूस पर मर जाना सबसे ज्यादा ऐसी मृत्यु थी जो आपकी जो कदर है उसको भी गिरा सकती है और जो बहुत दर्दनाक भी है, वो भी यीशु मसीह ने अपनाई। And he accepted the will of God और उन्होंने परमेश्वर की पिता की इच्छा को पूरा किया for his life, अपने पूरे जीवन काल में, so that he can fulfill the purpose of God. ताकि वो परमेश्वर पिता के दिए उद्देश्य को पूरा कर सके। What is true humility? एक सच्ची हलीमियत या दीनता क्या होती है? Humility is willingness to admit and confess. दीनता का मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा से किसी बात को जब मान लेते हैं, Pathway to serving God and others. और ऐसे मार्ग को जहां पर आप परमेश्वर और दूसरों की सेवा करते हैं, Allows you to advise and stay humble. कि जहां पर आप अपनी सलाह भी देते हैं और सुनते भी और दीन बने रहते हैं। Humility is not thinking too highly about yourself. दीनता का मतलब होता है कि आप खुद को दूसरों से बहुत बड़ा नहीं समझते And you are always depending on God. और आप हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं। You are always grateful to God. आप हमेशा परमेश्वर के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। Humility is an acknowledgement that our talents and abilities are and gifts that is from God. और दीनता का मतलब होता है कि हम जानते और मानते हैं कि मेरे वरदान, मेरी योग्यता परमेश्वर का दिया हुआ तोहफा है। It is not a sign of weakness, timidity or fear. It is an indication that we know where our true strength lies. और दीन और हलीम होने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं या आप डरे हुए हैं, वो है कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य को पहचानते हैं। We can be both humble and fearless. हम हलीम और निडर दोनों एक समय पर हो सकते We can हैं। be both humble and courageous. और हम हलीम और साहसी एक समय पर हो सकते हैं। Amen. आमीन। Philippians chapter 2 verse 3 to 4, you can read later on. It says that, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourself. और फिलिपियों 2:3-4 आप घर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अपना स्वार्थ की तरफ ना जाए, हमेशा दूसरे को खुद से बड़ा समझें। If you think that you are a humble man, अगर आपको लगता है कि मैं एक दीन पुरुष हूँ, humble person, एक दीन व्यक्ति हूँ, always, value others above yourself. हमेशा दूसरों का अपने से पहले सोचे, उन्हें ज्यादा मूल्य दे। See what they are looking for. आप देखें कि उनकी जरूरत क्या है, वो See किसे their खोज interest. रहे हैं, See their interest और उनकी रुचि देखें and try to fulfill it. और कोशिश करें अगर उसमें आप मदद कर सकते हैं। Proverbs 8:13 says, और नीति वचन 8:13 में to लिखा fear है, the Lord is to hate evil. और परमेश्वर का भय मानने का मतलब है कि बुराई से और घमंड से नफरत करना। I hate pride and arrogance, मुझे घमंड भरे लोगों से नफरत है। evil behavior and perverse speech. बुरा व्यवहार और बुरे वचनों, बुरे बातों से मुझे नफरत है। It reminds me of, when I say humble man, I really like him. I admire him, as a good leader. How many of you watch boxing? Now Pastor knows what और मुझे ये व्यक्ति बहुत, मैं इनको इज्जत करता हूँ। आप में से कितने लोग बॉक्सिंग देखते हैं या मुक्केबाजी का जो स्पोर्ट है वो देखते हैं? I love watching boxing. मुझे मुक्केबाजी देखना बेहद पसंद है। And I'm always busy, if you see my history, the whole, maybe 70 to 80% is like, boxing, all the boxing matches. अगर आप मेरा फोन उठाकर ये भी देखें मैंने क्या क्या चीज को अभी खोजा है, तो 70-80% मुझे ये मिलेगा कि मैं मुक्केबाजी के मैच ही देखता हूँ।
His name is Manny Pacquiao. उसका नाम है मैनी पैक्यो He's the only, 8 division winner. और वो एकलौता 8 डिवीजन का विजेता है। 8 division means in different weight, he's the winner. उसका मतलब अलग अलग वजन की जो मुक्केबाजी उसने की है उन सभी में वो विजेता है। If you read, and go through his biodata or his story, his start was very humble. और अगर आप उसकी कहानी को अगर पढ़ेंगे तो उसकी जो शुरुआत वो बड़े हलीम और छोटे पैमाने पर हुई थी। And today he's the only 8 division winner. और आज की तारीख में वो एकलौता 8 अलग अलग वजनों में जीतने वाला बॉक्सर है। Because he is a humble man and he loves God. क्योंकि वो एक दीन व्यक्ति है और वो परमेश्वर से And बेहद I've प्रेम seen him करता है। whether he lose or whether he win, he always kneel down and pray and always give thanks to God in front of the whole world. और वो पूरी दुनिया के सामने उसके मैच के दौरान चाहे वो जीते चाहे वो हारे वो घुटने पर आकर परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता है। And I've noticed he always acknowledges God. और वो हमेशा परमेश्वर को सराहता है। And he's not ashamed of the gospel. और वह सुसमाचार से कभी शर्मिंदा नहीं होता। Amen. आमीन। And not only the 8 division, but he is now, standing as a candidate for the president for 2022. और सिर्फ यही नहीं वो 2022 के लिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए भी एक व्यक्ति के रूप में खड़ा हो रहा है। For the country of Philippines. और फिलिपियों जो देश है उसके लिए। Amazing testimony. और बड़ी गवाही। You see, God always, raise the humble people. और परमेश्वर हमेशा उन लोगों को खड़ा करता है या उठाता है जो दीन होते हैं। And those who are boasting, those who boast themselves, God will make sure God will pull them down. और ऐसे लोग जो घमंडी होते हैं परमेश्वर इस बात को पुख्ता करते हैं कि वो जमीन पर लाए जाएं। The third point that I'm going to say, और तीसरी बात जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं, a true obedient life. एक सही परमेश्वर की बात को मानने वाला आज्ञाकारिता निभाने वाला जीवन। In 1 Samuel chapter 15 verse 22 it says, पहला सैमुएल 15 अध्याय 22 आयत में ऐसा लिखा है। But Samuel replied, सैमुएल ने यह प्रत्युत्तर दिया, Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in the obeying the Lord? क्या परमेश्वर होम बलि में ज्यादा प्रसन्न होता है या जब हम उसकी बात को मानते हैं वो तब खुश होता है? Says that to obey is better than sacrifice. यहां पे लिखा आज्ञाकारिता बलिदान से महत्व ज्यादा रखती है। And to heed is better than the fat of rams. और उसकी बात को सुनना, उसकी बात पर मनन करना किसी भी मांस को खाने से बड़ा मूल्यवान है। Amen. आमीन। Many times, we sacrifice a lot. और कई मर्तबा हम बहुत बलिदान देते हैं। We sacrifice our time. हम अपने समय का बलिदान देते We हैं। sacrifice, our money. हम अपना धन भी बलिदान करते हैं। We sacrifice many things. हम कई चीजों का बलिदान करते Our हैं। emotions, हमारी भावनाओं का, our family, परिवारों का, ourselves. हमारा खुद का। But, we end up not being obedient. लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी एक चीज हम नहीं करते, वो है आज्ञाकारिता या परमेश्वर की बात नहीं मानते। That's why in Samuel it says to obey is better than sacrifice. इसलिए सैमुएल भी कहता है कि बलिदान से अच्छा है कि तू परमेश्वर के वचन को मान लो। Let us, go back to the Old Testament and see some of the examples, those who have lived, their life very obediently. आइए थोड़ा पुराने नियम में चलते हैं, कुछ उदाहरण को देखते हैं जिन्होंने हलीमियत का और आज्ञाकारिता का जीवन निभाया। Abraham, obedience to sacrifice Isaac. हम जानते हैं अब्राहम ने अपने एक लौते पुत्र इसहाक को बलि देने तक के लिए तैयार हो गया था। Noah's obedience to God. नूह ने परमेश्वर की आज्ञाकारी को माना। We all know the story of Noah. हम नूह की कहानी को जानते हैं। Moses removed his shoes at the burning bush. उस जलती हुई झाड़ी में मूसा ने अपने पैर में पहने हुए जो भी था जूता या चप्पल वो उतार दिया। Daniel refused to defile himself with the king meal. दानियल ने मना कर दिया, मैं राजा के खाने को खाकर अपने को अशुद्ध नहीं करूंगा। Paul, obedience to heavenly vision. और पौलुस ने जो स्वर्ग से दर्शन पाया था उसके प्रति आज्ञाकारिता निभाई। You see, their life was never the same. आपने देखा कि इन लोगों का जीवन बाद में फिर पहले सा नहीं रहा। Amen. आमीन। Are we ready to live a life of obedience? क्या हम तैयार हैं आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए? Let us ask ourselves today. आइए खुद से आज इस प्रश्न को पूछें। The fourth point that I'm going to say. और चौथी बात जो आपसे बांटना चाहता हूं, Let us live a victorious life. आइए एक जयवंत का जीवन जिए।
Let us live a victorious life. एक जयवंत का विजय पाया हुआ जीवन जिए। In 1 Corinthians chapter 15 verse 57 it says, और पहला करंथियों 15:57 आयत में लिखा है, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord and Savior Jesus Christ. धन्यवाद हो परमेश्वर का जो हमें विजय देता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। Can you see victory in every area of your life? क्या आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में विजय देख सकते हैं? Or you are still, defeated by the enemy? क्या या आप आज भी शत्रु के द्वारा हराए और गिराए जाते हैं? Romans chapter 8 verse 37 says, रोमियो की पत्री 8:37 आयत में लिखा है, no, नहीं, in all these things इन सभी चीजों में we are more than conqueror हम जयवंत से बढ़कर हैं through Him उसके द्वारा who loved us. जिसने हमसे प्रेम किया। Amen. आमीन। Can everyone say amen? सभी कहे आमीन। Everyone say, we are सभी कहे हम सभी more than a conqueror in Jesus Christ. Amen. आमीन। Amen. आमीन। Let us proclaim the victory of our Lord and Savior Jesus Christ today. आइए मसीह यीशु में जो विजय है, आइए हम उसे आज पुकारें और उसकी घोषणा भी And करें start living a victorious life. और एक जयवंत का जीवन जीना शुरू करें। Stop, being, defeated. आप ऐसा होना बंद करें जो हारा हुआ व्यक्ति लगता है। Always, oh, I'm going this. Just proclaim the promises of God in your life. हमेशा कुड़कुड़ाए ना कि मेरे पास है नहीं, लेकिन हमेशा यीशु की विजय पर विश्वास करें और उसके विजय को दिखाएं। Because He is faithful. क्योंकि वो विश्वास योग्य He is है। faithful वो विश्वास योग्य है to fulfill all His promises. और वो अपने हर वादे को पूरा करता है। For nothing is impossible with God. कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Amen. आमीन। That is our God. ये हमारा परमेश्वर Just है। know that our God is above all power. आप इस बात को हमेशा यकीन करें कि हमारा परमेश्वर हर ताकत से बड़ा है, सर्वशक्तिमान He है। is all powerful, वो सर्वशक्तिमान है, all knowing, हर बात को जानता above है, everything, किसी भी चीज से बड़ा above all परमेश्वर है, things, हर एक चीज से बड़ा above है, all nations. हर देश से बड़ा है। Amen. आमीन। That is our God. वो हमारा परमेश्वर है He is our Father. और वही हमारा पिता भी है। And start living your life as you know Him very well. और इसलिए ऐसा जीवन जीना शुरू करें कि मैं अपने यहोवा को भली भांति जानता Know हूँ। that you are the child of God. जाने कि मैं उसकी औलाद हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ। Walk like a child of God. परमेश्वर के बच्चा बनकर चले Talk like a child of God. और परमेश्वर का बच्चा होकर चले। Think like a child of God. सोचे परमेश्वर के बच्चे होने के Your नाते life will never be the same. आपका जीवन कभी एक समान नहीं रहेगा। Amen. आमीन। My sixth point. और मेरी छठी बात, Let us live a life with revelation. आइए एक प्रकाशन पाया हुआ जीवन व्यतीत करें। Daniel, you see Daniel, he lived his whole life with the full revelation about आप God. अगर दानियल का चरित्र देखें, उसका पूरा जीवन परमेश्वर के द्वारा दिए हुए प्रकाशन पर चला In है। Daniel chapter 2 verse 21 and 22, और दानियल 2 अध्याय उसके 21 और 22 वगैरह it पढ़ेंगे says that, and he changes the times and the seasons. कि वो समयों को और रीतियों को बदल देता He है removes kings and rises up kings. और वो राजाओं को बदलता है और राजाओं को खड़ा भी करता है He gives wisdom to the wise और बुद्धिमान को बुद्धि देता है, and knowledge to those who have understanding. जिनके पास समझ है उन्हें ज्ञान भी देता He है reveals deep and secret things. और वो गहराई की बातों को प्रकाशित करता है। He knows what is in the darkness, जो अंधकार में छिपा है वो बड़े अच्छे से उसे जानता and है light dwells with him. और उसके अंदर जो ज्योति है वो हमेशा बनी Such रहती a है। great revelation. और ये कितने बड़ा प्रकाशन He है। knows God very well. जो दानियल है वो परमेश्वर को इस कदर जानता था That's why he could, say no to the king. और इसलिए वो राजा तक को सामने से ना कर सकता था। It is not easy to say no to king. कभी किसी राजा के सामने खड़कर किसी बात के लिए उसे ना कहना इतना आसान नहीं होता। Suppose today if the Prime Minister of India call you for dinner and you say, no, I'm busy. सोचे अगर आप प्रधानमंत्री साहब आपको फोन करते हैं, आइए रात का भोजन मेरे साथ करो, आपको ये नहीं, मुझे नहीं आना, Can you say no? क्या आप बिल्कुल ना कह देंगे उन्हें? But Daniel said no लेकिन दानियल ने कहा नहीं, because he knows he don't want to defile himself. क्योंकि वो जानता था वो खुद को अपवित्र नहीं करना चाहता। Are we ready to stand firm like Daniel क्या हम दानियल की तरह स्थिर खड़ा हो सकते and हैं? have a revelation like Daniel? क्या दानियल की तरह प्रकाशन पा सकते You हैं? see the life of King David? आप दाऊद राजा के जीवन को He देखें, had a great revelation about God. परमेश्वर के बारे में उसके पास भी बड़ा प्रकाशन था That's why he could write the beautiful psalms. और इसलिए इतने सुंदर गीतों को, भजन को वो लिख सका। 150 chapters. There is 150 chapters in Psalms. 150 भजन संहिता है। And you see Psalm 1, 23, 24, 91, 103, 119, 121. He talks about
the greatness of God, how merciful He is, how great He is. अपने कितने भजनों में भजन 1, 23, 24, 51, 103, 119, 121 में वो परमेश्वर का गुणगान करते कि परमेश्वर कितना बड़ा है। When you meditate the Psalms, you will really know King David has a great revelation about the Word of God. जब आप मनन करेंगे, भजनों को पढ़ेंगे, भजन संहिता को पढ़ेंगे, आप जाने कि दाऊद के पास कितना बड़ा अचंभा करने वाला प्रकाशन परमेश्वर Look के at बारे the में था। life of Saint Paul. Look at the life of Saint Paul. और प्रेरित पौलुस के अगर जीवन को आप देखें, Such a deep revelation he had about God. परमेश्वर के बारे में कितने गहराई में प्रकाशन उनके पास था। All his epistles और उसके जितने भी लिखी हुई पत्री हैं in the New Testament, नए नियम में, at least 13 to 14 are traditionally attributed to Paul. और 13 से 14 जो पत्री है कहा जाता है पौलुस के द्वारा वो लिखी गई Though है। only 7 of these Pauline, epistle are accepted. और यहाँ इसमें से तकरीबन 7 ऐसी हैं पौलुस के द्वारा पत्र लिखे गए जिसे माना गया है, ग्रहण किया गया है। Out of 27 books in New Testament, नए नियम की 27 किताबों में से almost half of a book he has written. आधे से ज्यादा जो किताबें हैं पौलुस के द्वारा Why? लिखी गई। क्यों? Because he had a great revelation about God. क्योंकि परमेश्वर के बारे में बड़ा प्रकाशन उसके पास था। Do I have a revelation about God? क्या हमारे पास परमेश्वर के बारे में प्रकाशन है? Who God is? परमेश्वर कौन है? What God can do for you? आपके लिए परमेश्वर क्या कर सकता है? Do you believe in Him? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? You've been calling yourself as a Christian for many years. आप कई सालों से खुद को एक मसीह करके बुलाते But हैं। why still you are living in the same place? तो क्यों आप उसी जगह पर आज भी जी रहे हैं? Why you are revolving yourself with the same thoughts? आप बार बार एक ही विचारधारा में क्यों फंस जाते हैं? Why you are going again and again in the same with the same mistakes? और बार बार एक ही गलती को क्यों दोहराते हैं? Think. सोचें, Ask God to give you the revelation about Him. परमेश्वर से मांगे कि वो अपना प्रकाशन आपको सौंपे। The 7th point that I'm going to say. और 7वीं बात जो मैं बांटना Let us चाहता हूं, practice forgiveness every day. हर रोज हम माफी देना उस बात को सीखें। Colossians chapter 3 verse 13 says, कुलोसियों की पत्री 3 का 13, bear with each other, एक दूसरे के साथ बने forgive रहो, one another. एक दूसरे को माफी दें। If any one of you has grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. अगर किसी को किसी के खिलाफ कोई दुख है, आप उस तरह उस व्यक्ति को माफ करें जैसे परमेश्वर आपको माफ करता है। Let you be the first person to forgive others. होने देखिए आप वो पहला कदम उठाएं कि मैं पहले माफ करूंगा। Don't wait for others to come and say, hey, I'm sorry. आप इंतजार ना करें कि वो आए माफी मांगे तब मैं माफी दूंगा। If you wait that someone else will come and say sorry, अगर आप इंतजार करें कि कोई और है तब मैं माफी दूंगा, you are in the wrong place. तब आप गलत जगह पर बने Your हुए हैं। attitude is not right. तब आपका रवैया ठीक You नहीं है। have that pride in तो you. तब आप में घमंड है And God hate pride. और परमेश्वर नफरत करता है घमंड और Make घमंडी sure से। you practice forgiveness every day. इसलिए जो माफी देना है उसे हर रोज जीवन में आप क्रिया में लाएं। I have so many things to talk about forgiveness, but I will skip some of these parts because we don't have much time. मेरे पास बहुत चीजें हैं माफी के बारे में बांटने के, लेकिन समय नहीं है तो हम आगे ही बढ़ेंगे। It's not easy. It's not. I've experienced in my life. It's not easy to forgive someone, those who hate you, those who talk bad things about you, those who gossip about you. और ये आसान नहीं होता उन लोगों को माफी देना जो आपके पीठ के पीछे बात करते हैं या आपके लिए बुरी विचारधारा रखते हैं या आपसे नफरत करते हैं। But I just want to say there is a beautiful fragrance in forgiveness. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ माफी देने की खुशबू अलग ही होती There है। is a breakthrough in forgiveness. जब आप माफी देते हैं आपका जीवन बदलता है। Amen. आमीन। Amen. Amen. You're looking for a breakthrough in your life? आप चाहते हैं मेरा जीवन बदल जाए, Forgive each other. तब एक दूसरे को माफी Forgive the दें। ones that you think he's not worthy to be forgiven. आप उसे भी माफी दें जिसे आपको लगता है वो उस लायक नहीं है माफी की, उसे भी माफी दें। Amen. आमीन। My 8th point मेरी 8वीं बात, is practice prayerful life. हर रोज प्रार्थना करें, ऐसा जीवन जिए। In Luke chapter 5 verse 16 says, लूका 5 की 16 में लिखा है, but Jesus often withdrew to lonely places and prayed. यहाँ लिखा प्रभु यीशु मसीह ज्यादातर एकांत में जाकर प्रार्थना किया करते थे। Why Jesus need to pray? यीशु को क्या आवश्यकता है प्रार्थना करने He की? is the Son of God. वो तो परमेश्वर का एकलौता पुत्र He is है, all powerful, वो पूरा सामर्थ्य है, all knowing. वो सब जानता है। But he knows that he was the Son of God. In the meantime, 100% he was the Son of Man. वो जानता था कि उसी समय वो परमेश्वर का पुत्र होने के नाते वो मनुष्य का पुत्र भी है। Amen. आमीन। Being in flesh, वो जो देहधारी हुआ, he knows that he needs God. वो जानता था कि मुझे पिता की आवश्यकता है। Every time, every day, he used to withdraw himself from the crowd and go to the lonely place and spend time with God. हर रोज हर क्षण वो समय निकालता और परमेश्वर की उपस्थिति में जाता।
First Thessalonians, पहला थिस्सलुनीका chapter 5, verse 17. 5 अध्याय 17 आयत, It says that pray continually. यहाँ लिखा है निरंतर प्रार्थना करें. In other translation, it says pray without ceasing. दूसरे अनुवाद में लिखा है बिना रुके प्रार्थना करें. Let us continue to pray. लगातार प्रार्थना करें. Let us continue to offer this prayer offer to the life of prayer every day. आइए प्रार्थना का जो भेंट है परमेश्वर को निरंतर चढ़ाएं. Let us continue to pray for each other. लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना Let us करें. not stop praying for each other. प्रार्थना करने एक दूसरे के लिए बंद ना करें. The ninth point that I'm going to share. और जो 9वीं बात बांटना चाहता हूं, Let us live a life as a true worshipper. एक सच्चा आराधक होने के नाते हम अपना जीवन व्यतीत करें. In 1 Corinthians chapter 6 verse 20 it says, पहला कुरिन्थियों 6 के 20 में लिखा है, For ye are bought with a price. तुम्हें एक मूल्य चुका कर खरीदा गया Therefore है. glorify God in your body, अपनी देह में परमेश्वर की महिमा in your करो, spirit, अपनी आत्मा में which are God's. जो परमेश्वर जिसके योग्य है. As a true worshipper, एक सच्चा आराधक होने के it's नाते not about coming on the stage and singing ये इसके बारे में नहीं कि आप स्टेज पर आओ और and यहाँ गाएं playing और यहाँ बजाएं, or singing while you're standing here. या आप जाकर जहाँ That खड़े is हैं, not only the worship. जहाँ खड़े वहाँ Your खड़े हैं, lifestyle, वो सिर्फ आराधना नहीं your है. dedication, आपका जीवन your कैसा है, sacrificial life, आप अपने जीवन में क्या बलिदान करते हैं, the way you want to live as a holy life, जिस तरह से आप जीवन को पवित्रताई में होकर जीना चाहते हैं, that is called a true worship. इसे कहते हैं सही आराधना. So let us live a life as a true worshipper. तो आइए एक सही अच्छे आराधक के तरह जीवन व्यतीत करें. Point number 10. और 10वीं बात, I'm almost done. खत्म होने वाला है. Okay, can we all wave our hands? क्या हम अपने हाथ Say amen. कैसे आमीन Amen. आमीन. My wife last night she warned me, when you start speaking, you are not, you don't see the time. So तो मेरी पत्नी ने भी रात को बोला कि जब तुम बोलना शुरू करते हो लगता है तुम समय नहीं देखते. probably the reflection of Pastor James is coming on me. और पास्टर जेम्स का जो परछावा है लगता है मुझ पर भी आ रहा है. Yeah, well, Pastor, please don't mind. Okay, so build your life with the word of God. और अपने जीवन की जो नींव है परमेश्वर के वचन पर बनाएं. Breathe the word of God every day. हर रोज वचन की सांस को भरें. Okay, let me ask some of the youngsters, how many books are there in the Bible? मैं जवानों से पूछना चाहता हूं कि बाइबल में टोटल कितनी Come किताबें on. हैं. Yes. Wow, you all know you're a very good Christian. आप अच्छे मसीह हैं. I'm just 66 kidding, I'm किताबें. just kidding. Wow. Yes, and how many books are there in Old Testament? पुराने नियम में कितनी हैं 39. And New Testament? और नए नियम में Great. We all know there are 66 books in the Bible, 39 in Old Testament, 27 in New Testament. हम जानते हैं 66 किताबें 39 पुराने में और 27 नए नियम में हैं. Are you done reading all the books? क्या आपने सभी किताबों को पढ़ लिया है? Are you done? क्या आपने पढ़ लिया है पूरी किताबों को? As a young man? एक जवान व्यक्ति As a होने के young नाते, woman? या जवान, Are you done? क्या आपने पढ़ लिया है? As a believer? एक विश्वासी As होने a के child नाते, of God? परमेश्वर की औलाद Are होने you के reading नाते, the word of God every day? क्या आप रोज आप वचन पढ़ते हैं? Are you feeding your spirit the word of God every day? क्या अपनी आत्मा को भोजन दे रहे हैं वचन का? Ask yourself today. अपने आप से आज ये पूछें, Because the word of God क्योंकि परमेश्वर का वचन in Hebrew chapter 4 verse 12 it says, इब्रानियों के 4 की 12 में लिखा For the है, word of God is alive and active, और परमेश्वर का वचन जीवित है और कार्यशील है. sharper than any double-edged sword. किसी भी दो धारी तलवार से ज्यादा वो तीखा है. It penetrates even to dividing soul and spirits, और वो गहराई में जाकर छेद सकता है प्राण और आत्मा को, joints and marrow. और आपके मांसपेशियों और हड्डियों को भी. It judges the thought और वो न्याय करता है विचारों का and attitude of the heart. और रवैयों का भी. That is the word of God. ये परमेश्वर का कलाम है. The word of God has a power to change your life. और परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य है आपके जीवन को बदलने का. Power to, bring that revelation in your life. और वो सामर्थ्य है आपके जीवन में प्रकाशन लाने का. Bring that spirit of forgiveness in your life. और आपके जीवन में उस माफी देने की आत्मा को लेकर आने का. Bring that prayerful life in your life. और आपके जीवन में वो एक साहसी एक जीवन को लाने का. It will help you to live like a true worshipper. और आपकी मदद करेगा सच्चा आराधक होने के लिए. Amen. आमीन. And my 11th point, और मेरे 11वीं बात, as we have sung this morning, this is my second last point, don't worry.
So we have sung this morning, I surrender all. हमने आज सुबह गाया कि मैं सब कुछ तुझे देता हूं यीशु। Not 99%, 99% not नहीं, 99.9, 99.99% नहीं, 100% पूरा 100% surrendered life. समर्पित किया हुआ जीवन। Luke chapter 22 verse 42 says, लूका 22 के 40 में, Father, if you are willing, remove this cup from me, yet not my will, but yours be done. पिता अगर तू चाहता ये प्याला मुझसे हटाते, लेकिन फिर भी मेरी नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। So this is the greatest example of being living as a surrendered life. Jesus has given, as he has lived a surrendered life. और ये बड़ा उदाहरण है किस तरह से यीशु मसीह ने समर्पित होने का जीवन व्यतीत किया। In Proverbs, we can read later. This is a very popular verse, chapter. आप बाद में भी इसे पढ़ सकते हैं। नीति वचन Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. 3 अध्याय 5 से 6 आयत। Trust in the Lord with all your heart और परमेश्वर पूरे हृदय से विश्वास करें, and lean not on your own अपनी understanding. समझ पर नहीं, In all your ways submit to him, और अपने हर मार्ग पर परमेश्वर को and he will समर्पित हो make your जाओ, path straight. और वो आपके मार्ग को स्थिर करेगा। Are you willing to surrender your life, क्या आप इच्छुक हैं अपने जीवन को समर्पित करने के लिए? your time, आपका समय, your body, आपका शरीर, your tongue, आपकी जुबान, your possessions, आपकी चीजें, your mind, आपका मन, your will, आपकी इच्छा, your desires, आपकी इच्छाएं, your affections, आपका प्रेम, your relationship, आपका संबंध, your soul, आपका प्राण, your spirit. आपकी आत्मा, God, परमेश्वर को are you? क्या आप इच्छुक हैं ये करने के लिए? Let us surrender ourselves to God today. तो ये अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें। Amen. आमीन। And my last point और मेरी आखिरी बात that is very important. जो बहुत जरूरी है, Love God and love one another. कि परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से भी प्रेम करें। Deuteronomy chapter 6 verse 5 says, Nirgama. No, व्यवस्था विवरण 6 के 5 में, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. और परमेश्वर से पूरे हृदय, पूरे सामर्थ, पूरे मन से प्रेम करें। It is not easy to love. और प्रेम करना इतना आसान नहीं It is होता। easy to say these three words, I love you. बड़ा आसान है किसी को कह देना कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ, But it is not easy. लेकिन उसे निभाना आसान नहीं है। Luke chapter 6 verse 32 says that, Luke chapter 6 verse 32 says, if you love those who love you, what credit is that that to you? Even sinners love those who love them. लूका 6 के 32 में लिखा है, अगर तुम सिर्फ उससे प्रेम करो जो तुमसे प्यार करता है, तो तुम्हारे लिए क्या ही तोहफा रखा है। पापी भी दूसरे पापी से प्रेम करता है। So, can you love someone who hates you? क्या आप उससे प्रेम कर सकते हैं जो शायद आपसे नफरत करता हो? Ask yourself today. खुद से जरा पूछें। If you can do that, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, if you can do that, अगर ऐसा कर सकते हैं, you will definitely see that breakthrough. तब आप अपने जीवन में नयापन को देखेंगे। You will definitely see the hands of God upon you. आप देखेंगे परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर होगा, And you will live a victorious life. और आप एक जयवंत का जीवन व्यतीत And करेंगे। the last, not but the least, और अंत में आपसे बांधना चाहता हूँ, 1 Corinthians chapter 13 verse 13 it और says, पहला कुरिन्थियों 13 के 13 में लिखा है, and now these three remain, यहाँ पर और ये 3 बातें बनी रहती हैं, faith, hope and love. विश्वास, आशा और प्रेम। And but the greatest of these is love. पर इनमें जो सबसे बड़ा है वो है प्रेम। Love. प्रेम। For God so loved the world that he gave his only begotten son. Those who ever believes in him shall not perish but have everlasting life. John 3:16. और यूहन्ना 3 के 16 को हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कि उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन Love पाए। your God with all your heart, अपने पूरे मन से परमेश्वर with से all प्रेम your करें, strength, पूरे सामर्थ्य से, with all your spirit, पूरे आत्मा से, and love others. एक दूसरे से भी प्रेम रखें। It is easy to love, to say I love you and love my brother, और बड़ा आसान है कहना अपने भाई को मैं अपने भाई से love प्रेम my रखता हूं, wife, अपनी पत्नी से प्रेम रखना, love my dear ones. अपने सगे संबंधियों से प्रेम रखना। But it is not easy to love somebody who hates you and who talks bad things about you. लेकिन जो आपके लिए बुरा सोचता है उससे प्रेम रखना आसान नहीं। But I want to encourage all of us today. लेकिन मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, Love them. उनसे भी प्रेम करें, Love them. उनसे प्रेम करें, Then definitely you will live the life of victorious in your life. तब आप जयवंत का जीवन अपने जीवन में व्यतीत करेंगे। Amen. आमीन। Let's start living a life without pride. आइए अपने जीवन को बिना घमंड से जीना शुरू करें, Let's start living a humble life, और एक दीनता का जीवन जिए, a true obedient life.
एक आज्ञाकारिता का जीवन a जिए, victorious life, एक जयवंत का जीवन जिए, a life with revelation, और प्रकाशन का जीवन जिए, a life with, a life with forgiveness, और एक माफी का जीवन जिए, a life with prayer. और प्रार्थना का जीवन जिए, Live a life as a, live a life as a true worshipper. एक सच्चे आराधक होकर जीवन जिए, Build your life with the word of God. परमेश्वर के वचन पर जीवन को आधार Surrender बनाएं, your life 100% to God. परमेश्वर को जीवन समर्पित करें, Love your God and others with all प्रेम your heart. परमेश्वर से और दूसरों से प्रेम रखें। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति I हो। hope you all are blessed. मैं आप प्रार्थना Amen. करता हूं कि आप सभी ने आशीष पाई है। Thank you. धन्यवाद।